Okay, Jai Hind to all of you. Today we are here to discuss about the lecturate, the process of the lecturate and what should be our approach for the lecturate. As we know that lecturate is the confirmatory task of the GTU, basically conducted on day 2 of the GTU. In this task, you will be provided with the card. On that card, there will be 4 topics mentioned. Priority wise, they are below average, average, near about average and above average topic. Those are considered with you only, with your personality only, that is below average. For example, my favorite movie, my favorite actor, my favorite destination place, my hobbies, daily routine, etc. These are the low level of topic. Next come the issues related with your society, like the child labor, like the corruption, like the pollution, like the population blast. All those issues that are related with your society comes on the third portion. Second portion, the topic related to your country, that is the APSPA, interstate water dispute, Manipur crisis, one nation one election. All this type of topic come into at second level. And the first level, there is a topic related to the international issues like the UN, UNSC, Indo-US relation, Quad, NATO, South China Sea and ASEAN countries. For all this topic, you must have a content over all the topic. For the content, you have to study, you have to read, you have to go through the newspaper, magazines, articles and various things. Today we are here to discuss about the approach, as I have told you earlier. तो अप्रोच क्या होना चाहिए सर? पहली चीज़, उन 3 मिनट में जो आप रूम के बाहर होके या फिर उस सेट के नीचे होके तैयार करते रहोगे अपना लेक्चरेट, उस समय क्या करना है, चीज़ों को ब्लॉक्स में डालना है, चीज़ों को हेडिंग्स में डालना है, ताकि मैस्मराइज और वो ऐसा बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल ना जाए. अगर सर आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो अपने दिमाग में, पूरा सोचोगे कि शुरू से अंत तक अगर मैं सेंटेंस फ्रेम कर लूँ, भूलोगे, 100% आप बोलोगे. उसका एक तरीका है 3 मिनट में. सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है कौन सा बोलूँ. कभी कभी हमें लगता है यार ये 3rd लेवल के टॉपिक पे या 1st लेवल के टॉपिक पे मैं बोल तो लूँगा लेकिन पूरा नहीं बोल पाऊँगा. वो फॉर द सेकेंड में भी लग रहा है कि इसमें मेरे पास स्पेसिफिक डाटा नहीं है. वो फॉर द थर्ड, क्योंकि आपका नॉन वर्बल ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा मैटर करता है. नॉन वर्बल आएगा आपके कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस आएगा कंटेंट से. कंटेंट अगर तीसरे पे है, गो फॉर द थर्ड. हाँ, चौथे के लिए आई एडवाइस कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिए उसे. तीसरे तक ठीक है, चलेगा. सोसाइटल इशू भी आते हैं, आप उस पर ईजिली बोल सकते हो. बोलना क्या है, तैयार क्या करना है. तैयार करते समय हेडिंग पे बात करनी है. सिंपली हेडिंग्स अपने दिमाग में बैठाइए, इन टॉपिक्स पे मुझे जाके अगले 3 मिनट तक बोलना है. अपने दिमाग में अगर 6-7 हेडिंग में डाल लिया, उधर जाके अगर 1-2 भूल भी गए, फिर भी 5 हेडिंग है. 5 हेडिंग में 3 मिनट ईजिली निकाल सकते हो. अरे एग्ज़ाम में देखे थे ना, हमें बस भाई तू एक लाइन बता दे, बाकी तो पूरा पेज में भर लूँगा. सेम विथ योर लेक्चरेट. लेकिन वो एक लाइन से एक पेज तक का सफ़र कैसे तय होगा विथ योर कंटेंट. फॉर द कंटेंट you must be indulge with some reading habit. Okay, today we are here to discuss about some important topic. कुछ ऐसे important topic जो आपके upcoming lecturate में आ सकते हैं. चाहो तो notes बना लो. Like the very first, the prominent AI, artificial intelligence. Second one is UCC, Uniform Civil Code. Third one is your G20 summit. Fourth one is your child labor, women empowerment, evergreen topic. Then Indo-US relation. Apart from this, tourism, and apart from that, United Nations Security Council और United Nations Security Council reform. ये कुछ important topic है जो आने की संभावनाएं जिनकी ज़्यादा हैं. अब सर अगर मान लो इसमें से कोई टॉपिक सही में आ गया तो फिर आप बोलोगे क्या उस पर. बोलने के लिए कंटेंट चाहिए. कंटेंट में हाँ, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा या फिर एक आपको रास्ता दिखाऊँगा कि हाँ इस रास्ते पे चल के आप कंटेंट बना सकते हो अपना. फॉर सेक, अगर आपका टॉपिक आ गया G20, जो कि हाल में ही हुआ है, G20 समिट. सो उन 3 मिनट में फ्रेम क्या करना है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय G20, फॉर्मेशन कब हुआ, क्यों हुआ, फिर अभी इसका समिट नंबर कौन सा था, कितने तारीख को हुआ, इंडिया को प्रेसिडेंसी क्या पहली बार मिली है, इससे इंडिया बेनिफिट क्या क्या की पॉइंट्स निकले इस G20 के. फॉर सेक, द G20 इज़ अ group of 20 members, although 19 member and 1 European Union, and it is founded in 1999. Earlier this was only economical forum.
now also the only discussion part of G20 is economic. बट पहले अभी क्या होता था इधर कि सिर्फ जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे वो मिलते थे, बट आफ्टर 2008 ये लीडर्स भी इसमें मिलने लगे, इसलिए अब G20 मीटिंग से हट के ये G20 समिट हो गया। आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और अमेरिका वो ब्रदर्स वाला सीन था ना, उसके बाद से ही इसमें लीडर्स भी मिलने लगे। तो हाँ, अभी इस बार क्यों मिला है आपको इंडिया को, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बहुत अच्छा कर दिया या फिर बहुत एज अ गिफ्ट हमें ये चीज़ मिला, ये एक सिस्टम के हिसाब से चल रहा था, उस हिसाब से हमारा नंबर आना था 2023 में। फिर 20 साल बाद हमारा नंबर आएगा, 20 साल बाद मतलब लगभग 2042 में लगभग, उस समय फिर से ये रोटेशन बेसिस पे ये प्रेसिडेंसी हमारे पास आएगा। प्रेसिडेंसी आया ये बड़ी बात नहीं थी, उस प्रेसिडेंसी आने के बाद हमने क्या क्या अच्छा किया, कैसे कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया, वो बड़ी बात है। जेंटलमैन, इस बार यूसीसी में आप ऐड ऑन कर सकते थे, जैसे कि एडिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन बाय इंडिया, अब वो G21 हो गया। सोचो, एक अफ्रीकन यूनियन जिसमें मोर देन 50 कंट्रीज़ हैं, आपने उन्हें उसमें स्टैंड दिया, आप ऑलरेडी उनके नज़र में एक गुडविल काम कर गए, अभी उनके नज़र में एक स्टेप ऊपर उठ गए। ये हेल्प करेगा इंडिया को काउंटर करने का चाइना को। अभी वो चाइना का वो जो पॉलिसी है ना चेक बॉक्स वाला कि भैया कैश दो, इनको ख़रीद लो, किसी तरीके से इनको डेप्ट ट्रैप में फंसा दो, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया का ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी अमेरिका में अपना गुडविल तो हुआ, साथ साथ अपनी कंपनीज वहाँ पे टेक ओवर करेंगी, वहाँ मार्केट बहुत अच्छा है, अभी उधर मिनरल एंड रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। एक्सप्लोरेशन अभी भी अफ्रीका का बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। छोटे एग्जांपल, अपने जो मोटर बाइक्स हैं, अभी हीरो उधर जाके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, उधर चाइना का कोई कंपनी मोटरसाइकिल में स्टैंड नहीं ले पाता इंडिया के सामने। बजाज अपना उधर जाके परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। सेकेंड थिंग जो हमने अच्छा किया, सोचो एक फैमिली में एक मुद्दे पे सारे लोगों को मना पाना मुश्किल है, लेकिन इंडिया ने बहुत सारे लिस्ट पे सारे 20 मेंबर्स को मनाया, सारे 20 मेंबर्स को उन पे सहमत करवाया। उसमें से आईमैक भी एक है, उसमें से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पे भी काम किया इंडिया ने। ऑल्दो हमारा कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एज अ वर्ल्ड लीडर हमने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमने बायोफ्यूल पे भी काम किया, एडमिटेशंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन जो हमने कर ही चुके थे, और फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे भी हमने काम किया। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी हमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर पाने में, क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ जिनके लिए हमने गुडविल में कुछ काम किया है वो सारे सपोर्ट करेंगे जब यूएनएससी में हमारा परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम स्टैंड करेंगे। तो इस तरीके से जो क्यों बना G20, क्या हुआ उसमें, अभी कितने मेंबर्स हैं, सारे याद करने का सिंपल तरीका जो बता सकते हैं, G7+1 दैट इज़ रसिया। वह तो G8 था ना, वो तो क्रीमिया वाला सीन 2014 के बाद कम हो गया, उस पर बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिक जो डेवलपिंग है, जो अभी आने वाले समय में डेवलप कर सकते हैं, वो सारी इकोनॉमिक जोड़ दो। 19 वैसे हो गए, एक यूरोपियन यूनियन 20 हो गए, अब अफ्रीकन यूनियन जोड़ दिए, G20 नाउ बिकम G21। इसके बाद आप बता दीजिए कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। बस खत्म, G20 इतना ही था, नहीं इतना नहीं था, मतलब इसके आगे ये एक बेस है, इस पर आप अपने और भी कंटेंट डाल के अच्छा लेक्चर तैयार कर सकते हैं। जैसा हमने अभी G20 में बात किया कि यूएनएससी के रिफॉर्म में, सर यूएनएससी का फिर है क्या? अगर मान लीजिए आपको टॉपिक आ जाए यूएनएससी और यूएनएससी रिफॉर्म, तो फिर आप उस पर क्या कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, क्या है ये, यूएन के कितने में ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स में इसका रोल क्या है स्पेसिफिक, as it is called as executive organ of the United Nations. The primary motto of the UNSC to maintain peace and security all over the world. अभी तक फिर इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या काम किया है यूएनएससी में, अभी क्या करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म में क्या ज़रूरत होगी, रिफॉर्म क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ये आउटडेटेड हो गया है, ये उन 5 मेंबर्स के बीच में फंस के रह गया है। यहाँ फंडिंग का एलोकेशन फिक्स नहीं है, यहाँ पे पावर गेम ज़्यादा चलता है, यहाँ पे मेंबर्स परमानेंट नहीं है, होल वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थ साउथ, वो इकोनॉमिक में बटे हुए हैं। सर ज़्यादातर जिनके पास वीटो पावर या जो परमानेंट सीट है वो नॉर्थ में बैठे हुए हैं, साउथ का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तभी इंडिया को क्यों चाहिए, इंडिया के साथ साथ कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें अपने आप को दावेदार मानते हैं फॉर द परमानेंट सीट,
इन पे आप बात कर सकते हैं। फिर इंडिया को ही क्यों चाहिए, क्योंकि सर हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, लार्जेस्ट मार्केट है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। एट द सेम टाइम यूएन का जो सबसे प्रमुख काम, यूएनएससी का पीस कीपिंग फोर्सेस यही तो भेजती हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? 43 टाइम्स इंडिया ने भेजा, मोर देन 16,000 सोल्जर्स हमने भेज रखे हैं पीस कीपिंग फोर्सेस में। ये सारी चीज़ें प्लस जो अभी G20 में हमारा रोल, जो हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप पाने में। मान लीजिए ये तो इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक हो गया। मान लीजिए अगर आपको कंट्री लेवल पे आ गया लाइक यूसीसी, तो फिर आप कैसे करेंगे? यूसीसी स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। First of all, you must give the definition of UCC, where it is written in our constitution. In the part 4 of our constitution, under Article 44, there is a provisions of UCC, which is Uniform Civil Code. Then you must tell why it is in the current news. As Government of India by the 22nd Law Commission asks for our review and feedback about the implementation of UCC throughout the country. तो क्या सर 22वां ही आया था, 21वां नहीं आया था? सर आया था, 21st लॉ कमीशन भी आया था, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। आई थिंक अप्रॉक्स 2017 में ये कमीशन बनी थी। उन्होंने बताया था एट दैट स्टेज, एट द स्टेज ऑफ 2017 कि यूसीसी इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। मतलब 2017 में फिर अचानक से फिर से क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग टू ब्रिंग अ ड्राफ्ट ऑन द यूसीसी। तो उससे पहले देश का रुख तो जान लें। ये सारे बता सकते हैं वाइट इन द करेंट न्यूज़। सो नाउ व्हाई यूसीसी इज़ इन डिमांड, व्हाई वी नीड यूसीसी? तो फिर आप बता सकते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस दैट इट विल गिव इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी देगा, कल्चर इक्वालिटी देगा, एट द सेम टाइम यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज देगा, एक लॉज पूरे कंट्री पे देगा। Second thing, if there is a uniformity among the criminal and the factories and the companies act, why not the uniform civil act? Civil, those matter related with the marriage, adoption, inheritance, those matter are called civil. In our country there are various civil laws or civil act, like the Hindu Marriage Act, Muslim Personal Board, लाइक क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जीव्स, सबका अलग अलग है। अभी उसका डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं कि हिंदूज़ किसे कहते हैं, मुस्लिम क्या है। हाँ, अभी इतना मान के चलो कि रिलीजन, कल्चर के हिसाब से अलग अलग मैरिज एक्ट हैं, जिस पे वो अलग अलग अपने सिविल मुद्दों को, जो मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस है, उनको लीड करते हैं। तो हमें चाहिए क्यों, जब ऑलरेडी वो सारी चीज़ें चल रहा है? तो उसमें आप बता सकते हैं अगर चाहिए और ये सारे फ़ायदे हैं, अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद पॉलिटिकल विल नहीं था हमारे पास, विल पावर नहीं था पॉलिटिकल। सेकंड वन इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉ, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके वजह से नहीं हो पाया। तीसरे वन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ना ही सिर्फ रिलीजन के बेस पे, यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत सारे कल्चर्स आते हैं। अगर उन सारों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की या ब्लैंकेट बैन लगाने की कोशिश करें तो फिर अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है पूरे देश में। सर फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? और हाँ, इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर बिकॉज यूसीसी इज रिटन इन द डीपीएसपी और सेम टाइम में फंडामेंटल राइट्स में कुछ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट करता है डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। इसको हर एक आर्टिकल के साथ आप डिटेल में बता सकते हैं। एट द सेम टाइम फिर हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन पे आप बात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको टॉपिक आ गया फॉर से अगर सोसाइटल इशू से उठाएं तो चाइल्ड लेबर। अभी चाइल्ड लेबर क्या है, हु इज़ चाइल्ड, कहाँ डिफाइन है चाइल्ड? अभी तो अपने को इतना ही पता है कि 18 साल। चाइल्ड लेबर जैसे टॉपिक पे पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ सोचिए, हु इज़ चाइल्ड, व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर, इफ़ चाइल्ड लेबर इज़ देयर व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट चाइल्ड लेबर एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर किस वजह से होता है और चाइल्ड लेबर से क्या प्रॉब्लम आता है, ये कॉज एंड इफेक्ट। फिर अगर है ये प्रॉब्लम, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या रहे हैं चाइल्ड लेबर को रिड्यूस या एलिमिनेट करने में? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चाइल्ड को कोई राइट्स दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द चाइल्ड? देन व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए एंड द वे फॉरवर्ड, आगे क्या होना चाहिए जिससे चाइल्ड लेबर कम हो जाए? एज देयर इज एम्बिग्विटी अमॉन्ग द लॉज अबाउट द definition of the child. There are some laws which says that the
child or the person below the age of 14 is known as child, who is not allowed to work in factory or any hazardous work. तभी इस एम्बिग्विटी को ही प्रॉब्लम है वो उधर बताने का. अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट like 21A, like 24, like 39E and 39F, like 45, like 51K, which talk about the duty of the parents to give the free and compulsory education. उसके रीजन्स में बहुत सारे बता सकते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेग्लिजेंस और अदर थिंग्स. ये सारी चीज़ों को फ्रेम करते हुए अपने आइडियाज़ को बनाइए. अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, टेक द हेल्प ऑफ द गूगल एंड यूट्यूब. लेक्चरेट में सिर्फ डिलीवरी मैटर नहीं करता, कंटेंट भी मैटर करता है सर. और कंटेंट एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन जरूर आएगा. एंड स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द कंटेंट एंड दैट हाउ टू डिलीवर दैट कंटेंट, सो कम हियर. Kamal is here. No more scarcity of content will be there. See you in the class. Till then, Jai Hind.